Good morning, everyone. Today we are going to solve some numericals from previous year board questions. Alright, we will start with year 2020 and we will come to year 2016. It means we will solve all the previous year questions related to current electricity chapter. So, our first question is a theoretical question, that is, derive the condition of balance of Wheatstone bridge. Draw this first part, and second part is draw the circuit diagram of a meter bridge to explain how it is based on Wheatstone bridge. See, we have studied this topic in our previous theory class, that is class of 20 class which one 21st July. So you can study it from this again. It is a theoretical question. Now next question, it is based on Kirchhoff's law. I think we have solved this question previously also. It is from CBSE 2019. It can be easily solved applying Kirchhoff rule. See how. I am only making the equation just because I have already solved it earlier in our regular theory class. See, consider the loop, first one, name it A, B, C, D, E, F. You can consider traversal direction this and traversal direction this. Two loops, first one A, B, C, D, A. In this you can easily solve. Current is moving from here. When we move from negative to positive, we take it as positive EMF, and this will be this. And now the traversal, consider the current as, here the current is starting as I, take it as I1. I1 is coming from here to here, and here it is starting from I2. So here this current will be I1 minus I2, and here this current I2 will move from here to here. So I1 minus I2 will be through across 40 ohm and I1 across 20 ohm. So I have to calculate I1 and I2, I1 and I1 minus I2. Alright, so first I1 multiplied by 20, and in this one current and traversal is in same direction, so plus 40 I1 minus I2. So this is our first equation. You can solve it for I1 and I2. Now next, in second loop, D, C, E, F, D. In this loop, consider here traversal from negative to positive. So it is how much? It is, I think it was 40 ohm. So let me check. Yes, it is 40 volt. So it is 40. It is equals to we have considered I2 current. So here the current will be I2. So here traversal and current is in same direction. So we will take I2 multiplied by 10 ohm. But here the traversal I1 minus I2 current is here, but traversal here is clockwise, so it is opposite. So it should be minus 40 multiplied by I1 minus I2. So solve it and we will get our I1 and I2. Next consider I1 and consider I1 minus I2, and that will be our answer. हमने पीछे भी किया था, जो I1 की वैल्यू आई थी 4 एम्पियर and I1 minus I2 आया था 0 एम्पियर. You can see it from our previous video also. Now next question is again some theory and some practical based question. Here it is a very good question. What is end error in a meter bridge? It is usually asked in our practical Viva questions. What is end error in a meter bridge? How it can be overcome?
the resistance in the two arms. So first part is this one only. So what is end error? See, end error in a meters bridge is simply the errors at the end points of the wires due to connection between the copper strips and the wire. I am making a figure for meters bridge. Here we have seen this type of arrangement. These are metal strips. Here wires are bounded, 1 meter wire AB, and these are copper strips. Here some known resistance box is added, or the resistance is added. Here an unknown resistance S is added, so that we can calculate the value of value of its resistance. See, here we have connections with copper strips. Here 1 meter scale is connected and it is not attached to the wire AB. So we have two problems. First one is, when we attach here to here, the resistance at the junction of this wire is made up of manganese or constantan or nichrome. It means these are resistors having higher resistivity, but it is a copper, so it has some lower resistivity. Here some kind of extra resistance is maintained. Alright, so this reduces the current. So here the resistance is more than this resistance and this copper wire. Change in resistance तो कुछ इसके कारण होता है. And second one is the meter scale. Meter scale is actually not attached to these end points. Meter scale is somewhat placed at some distance. Here 0 end of the meter wire, and here 100 centimeter end of the meter wire. It is not exactly 100 centimeter and 0 centimeter of the meter scale. So these are two end errors. Alright, so how can it be reduced? For reduction of this error, we usually calculate by placing R here and S here. R is our known resistance, S is our unknown resistance. We usually calculate the balancing length while putting R here. मतलब ऐसे यहाँ पे गैल्वेनोमीटर ऐसे जुड़ा हुआ है, ठीक है, और ये हमारा जॉकी लगा हुआ है. पहले हम इस तरह के अरेंजमेंट, जब R लेफ्ट साइड है, S राइट साइड है, तब हम बैलेंसिंग लेंथ निकालते हैं. बैलेंसिंग लेंथ आई L1, ठीक है. इसके बाद अब S को इधर रख दीजिए, R को इधर रख दीजिए, ठीक है. कोई भी खास परिवर्तन नहीं आएगा, बस एक रेशियो चेंज हो जाएगा. उसके बाद हम फिर से दूसरी जो बैलेंसिंग लेंथ है वो L2 निकालते हैं. आफ्टर इंटरचेंजिंग R एंड S, ठीक है. तो हम L2 निकाले. फिर ये L1 और L2 को क्या करिए, दोनों ही बैलेंसिंग लेंथ आ गई, इसका एवरेज ले लीजिए. सो दैट L विल बी द एक्चुअल बैलेंसिंग लेंथ. तो आप समझ गए कि ऐसे रिड्यूस क्या करना है, कि एक बार R और S ऐसे रख के एक बार इनकी पोजीशन इंटरचेंज करके हम रीडिंग लेते हैं. तो वही यहाँ लिखा हुआ है सोल्यूशन में. देखिए, presence of contact resistance at the joints of the bridge wire with the metallic resistance strips. Second, the ends of wire not widening with the starting 0 centimeter and end 100 centimeter marks on the meter scale. So these are two end errors. So to overcome, find the balance length with two interchange position of S and R and getting averaged value of S from two readings. तो अगर आप L1 निकालेंगे, L2 निकालेंगे, तो यहाँ पे आप जब L को भी आप इस तरह से कर सकते हैं कि बैलेंसिंग लेंथ आप इस तरह से एवरेज करके निकाल लें, या तो फिर आप सारा ही कैलकुलेशन करके, चूंकि S होता है R इंटू 100 माइनस L बाई L, 100 माइनस L बाई L, या तो फिर आपकी पोजीशन पे डिपेंड करता है कि L ऊपर रहने वाला है कि 100 माइनस L ऊपर रहने वाला है. फिर आप S भी निकाल के S1 S2 निकाल के इसको, ये वैल्यू भी आपकी आंसर हो सकती है. तो चाहे आप इस तरह से करें या इस तरह से करें, पर आपको पोजीशन चेंज करके ये सारी वैल्यूज़ निकालनी है, ठीक है. तो ये हमारा हो गया सेकंड क्वेश्चन. इसका देखिए, इसका सेकंड पार्ट क्या था उसको देखते हैं. The resistance in two arms of the meter bridge are 5 ohm and S respectively. When the resistance S is shunted with an equal resistance, the new balance length found to be 1.5 L1. यानी L1 पहले L1 लेंथ जो थी, ये L1 लेंथ जो है ये इनिशियल लेंथ है. when R is equals to 5 ohm and unknown resistance is S.
ये ऐसा था पहले से तब। और फिर उसके बाद हमने क्या किया, अपने अननोन रेजिस्टेंस के पैरेलल में एक और इक्वल रेजिस्टेंस पैरेलल में जोड़ दिया। मींस पहले ये सेकंड पार्ट के लिए है, ये फर्स्ट पार्ट से इसका कोई लेना देना नहीं है। जब ऐसा कंडीशन था तो बैलेंसिंग लेंथ आई थी L1, ठीक है। लेकिन हमने क्या किया, एक तार और ऐसे ही पैरेलल में S के इक्वल ही S वायर पैरेलल जोड़ दिया। तब अब क्या हुआ, तब ये रेजिस्टेंस तो कुछ चेंज हो गया ना। तब जो नई बैलेंसिंग लेंथ आई, मान लीजिए वो यहाँ पे आई, ठीक है ना, नई बैलेंसिंग लेंथ ये हो गई L2, ठीक है, L2। तब हमें और ये L2 किसके बराबर है, 1.5 टाइम्स ऑफ L1 हो गई है बैलेंसिंग लेंथ। तो हमें S की वैल्यू निकालनी है। तो इसके लिए देखिए, सबसे पहले तो मैं सेकंड पार्ट को दिखा रहा हूँ। पहले जब इनिशियली बैलेंसिंग कंडीशन होती क्या है, R बाई एस इज इक्वल टू 100 S इंटू एल बाई 100 माइनस एल। देखिए ये L बाई 100 माइनस एल, ये पोजीशन पे डिपेंड करता है, मैंने R लेफ्ट में रखा है कि R राइट में रखा हुआ है। ओवरऑल ये व्हीटस्टोन ब्रिज की बैलेंसिंग कंडीशन से आता है, तो इसको कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा कि 100 माइनस एल हमेशा नीचे रहना है या हमेशा ऊपर रहना है। इट डिपेंड्स अपॉन दी पोजीशन। अगर मैंने R यहाँ रखा हुआ है और S इधर रखा हुआ है, देन इट विल बी दिस। But if I place S here and R here and L is counted here and 100 minus L is counted here, then this will be S by L upon R by 100 minus L, ठीक है। तो S की वैल्यू क्या हो जाएगी, L upon 100 minus L, S is equals to L upon 100 minus L। और यहाँ पे क्या है, S is equals to 100 minus L by L, ठीक है। तो ये पोजीशन पे डिपेंड करता है, इससे कंफ्यूज नहीं होना है, हमेशा व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल लगाना है। नाउ अवर R is 5 ohm अकॉर्डिंग टू अवर क्वेश्चन एंड अननोन इज S, तो R की जगह 5 रखा और अननोन की जगह S रखा। पहले कंडीशन क्या थी, L1 बैलेंस कंडीशन थी, तो L1 अपॉन 100 माइनस L1। नाउ इफ आई हैव प्लेस्ड वन अनदर S विद प्रीवियस S इन पैरेलल, तो S दो पैरेलल हो गए, तो इनका पैरेलल कंडीशन का रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, 1/S डैश। मान लिया मैंने कि रिजल्टेंट S डैश आया इन दोनों का, तो क्या होगा 1/S प्लस 1/S। सो S डैश विल बी इक्वल्स टू S/2। S/2 है ना कि 5/2 है, याद रखिएगा ये S/2 है, ठीक है। अब इसी इक्वेशन में नया वाली कंडीशन में हमने बैलेंस क्या रखा, R तो 5 ही ओम रहेगा, S की जगह क्या रखना पड़ा, S/2। L1 की जगह अब क्या रखेंगे, 1.5 L1, क्योंकि बैलेंसिंग लेंथ चेंज हो गई, यानी जहाँ जहाँ L1 था वहाँ 1.5 L1। तो अब ये दूसरी इक्वेशन आ गई। अब इस वाले में से इस वाले को डिवाइड कर दीजिए, तो ये वैल्यू 5/S अपॉन 5/S/2 से कट जाएगा, 5/S 1/2 केवल बचेगा जो ऊपर चला जाएगा। और ये वाले में मैंने क्या रखा, पहले इसको रखा है, फिर इस वाले का अपॉन में रहने वाला तो इसको रेसिप्रोकल करके रख दिया है, ठीक है। तो हमने फिर इसको L1 के लिए सॉल्व किया है, L1 के लिए। तो L1 की वैल्यू कितनी आ गई, 100/3 सेंटीमीटर्स। When I have got L1 is equal to 100/3 centimeters, then I can easily calculate S using our first equation. So it is R by S is equals to L1 upon 100 minus L1. When initially balanced, 5/S is equals to 100/3 upon 100 minus 100/3, L1 की जगह 100/3 सेंटीमीटर। देखिए सेंटीमीटर्स में रखे जाते हैं लेंथ। तो अब देखिए यहाँ से S कितना आ गया, 10 ohms आ गया। तो ये हो गया हमारा जो अननोन रेजिस्टेंस था। तो अगर आपको दो अलग अलग कंडीशंस बैलेंसिंग की दी हो तो आप अननोन रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम CBSE 2018. It is in two parts. First one is theoretical, second one is some practical based question. First part says write the principle of working of a meter bridge. So we have studied it previously, working of a meter bridge and principle also. So you have to write here principle only, not the working. Principle of working, not working. All right. So you have to write only the principle. Its principle is Wheatstone bridge, but you don't have to write only the name. You have to explain the Wheatstone bridge principle. All right. Now next is, in a meter bridge, the balance point is found at a distance L1 with the resistances R and S as shown in the figure. All right. An unknown resistance X is now connected in parallel to S and the balance point is found at L2. Obtain a formula for X in terms of L1, L2 and S. जैसा हमने पीछे किया वैसे ही यहाँ पे अब फॉर्मूला बेस्ड तरीके से करना है। सो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन। फर्स्ट मीटर्स ब्रिज है, ये लगा हुआ है S और
ये तो ये अरेंजमेंट था। पहले कहा था कि R और S है, दूसरे वाले में क्या कहा, R और S, और S के साथ पैरेलल में एक और आके क्या लग गया, X। ठीक है, तो ऐसा हो गया। तो दोनों, पहली कंडीशन ये वाली, दूसरी कंडीशन ये वाली। अब दोनों के लिए बैलेंसिंग लेंथ निकाला जाए तो वही कर लेते हैं। मान लीजिए ये पहली बैलेंसिंग कंडीशन ये L1 पे थी, ठीक है, लेफ्ट से नापते हैं। सेकंड बैलेंसिंग कंडीशन इज एट L2। मान लीजिए सेकंड बैलेंसिंग कंडीशन आई आपकी ये यहाँ से L2 पे आई, ये L2 पे, ये बीच में गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, यहाँ आप गैल्वेनोमीटर दिखा सकते हैं। तो L2 पे आई। अब देखिए बैलेंसिंग कंडीशंस फॉर फर्स्ट, इनिशियली R बाई S इज इक्वल्स टू L अपॉन 100 माइनस L, बट इट इज L1। नाउ नेक्स्ट, अब ये जब X और S पैरेलल हैं, फॉर S एंड X पैरेलल, तो 1 बाई S बाई X इज इक्वल्स टू, मान लीजिए ये S डैश है, ठीक है ना, तो पैरेलल वाला, या S P S डैश कुछ भी दे दीजिए नाम, देन इट विल बी SX X प्लस S। ऑलराइट, so this is the reciprocal of this is S dash is equals to XS upon X plus S. So this is our resistance here in this case. Now put according to second condition, R by XS upon S plus X, देखिए ये अपना पूरा डिनोमिनेटर है, it is equals to L2 upon 100 minus L2. Now solve for, देखिए हमें निकालना क्या क्या है, L1 और L2 और S के फॉर्म में निकालना है X, यानी R को एलिमिनेट करना है। सो टेक रेसिप्रोकल, तो R विल बी एलिमिनेटेड। टेक डिवीजन, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, सो इट विल बी टेक R by S upon R by XS upon X plus X, so it will be R by S upon R upon XS upon S plus X, मैंने पूरा ऐसे रख दिया। इट इज इक्वल्स टू L1 बाई 100 माइनस L1 अपॉन L2 बाई 100 माइनस L2। take it now solve. So this will be XS upon S plus X upon S XS upon X plus S upon S is equals to, this will be L1 upon 100 minus L1, L1 upon 100 minus L1 and divided by, so it is multiplied by 100 minus L2 upon L2. We can write it like this. Now for solving, take L1 by L2 simultaneously, L1 by L2, and here it is 100 minus L2 upon 100 minus L1. So it is take this XS upon X plus S and take it like this. We can place it like here, cut it. Now take reciprocal, X plus S upon X is equals to L2 by L1, and here 100, take L1 outside, L1 common, or put it like this, 100 minus L1 upon 100 minus L2, put it like this only. So we have to solve for X only. Now divide with denominator. So it is 1 plus X by X is equals to L2 by L1, 100 minus L1 by 100 minus L2. Now we have to solve for X. To take it here and take reciprocal, 1 minus and reciprocal. So we can write X is equals to S in reciprocal 100 minus L1 upon 100 minus L2, and it is minus 1. आप देखिए इसको हम लिख सकते हैं
और यहाँ पे एक और चीज़ है L2/L1, ये भी तो छूट गया। सो दिस विल बी अवर आंसर 1 + S/x। तो हमने क्या किया, पहले 1 को इधर माइनस किया तो ये क्वांटिटी बनी, फिर उल्टा कर दिया तो x ऊपर s नीचे था, फिर s उसमें चला गया तो ये बन गई हमारी, ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड फॉर्मूला। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं जो कि थ्योरेटिकल होते हैं। नाउ वन क्वेश्चन, दिस वन इज आस्क्ड इन CBSE 2017, ड्रॉ सर्किट डायग्राम of a meter bridge used to determine the unknown resistance capital R of a given wire. Hence derive the expression for R in terms of known resistance. हमने ये अपने थ्योरी पार्ट में पढ़ लिया है। नेक्स्ट, what does the term end error in a meter bridge circuit? टर्म एंड एरर का क्या मतलब है? एंड एरर हमने पढ़ लिया, कैसे सही करते हैं ये भी पढ़ लिया। Now next is, how will the balancing point be affected if the positions of the battery and galvanometer are interchanged? Positions of the battery and galvanometer are interchanged. See which devices are interchanged, galvanometer and battery. In previous question we have studied about the interchange of R and S. R और S मीटर बीच में जब इंटरचेंज करते हैं तो केवल रेशियो परिवर्तन होता है। क्यों? क्योंकि R/S की जगह S/R हो जाएगा। लेकिन जब हम बैटरी और गैल्वेनोमीटर इंटरचेंज करते हैं तो हमारी जो सारी क्वांटिटी का मेजरमेंट है वो अगर उसमें कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि हम यहाँ पे रेशियो ले रहे हैं। जब भी हम व्हीटस्टोन ब्रिज लेते हैं तो हम लेते हैं R/S = L/100 - L. Here we are taking only the ratio and here ratio is as connected. तो अगर हम रेशियो, अगर हमने S और R, वो गैल्वेनोमीटर और बैटरी को आपस में बदल दिया, ठीक है, तो सभी क्वांटिटी का मेजरमेंट अपोजिट ले रहे हैं, यानी 100 - L L बन रहा है, L 100 - L, लेकिन S R बन रहा है और R S बन रहा है। तो इस वजह से जो इनका जो रेशियो होगा वो पूरी तरह से एक दूसरे को निगेट कर देगा और यहाँ पे कोई भी वेरिएशन नहीं आएगा, यानी बैलेंसिंग लेंथ पे कोई भी असर नहीं पड़ता है जब हम गैल्वेनोमीटर और बैटरी को आपस में इंटरचेंज करते हैं। और बैलेंसिंग लेंथ पे अगर कोई असर नहीं पड़ता, इसका मतलब करंट उस सर्किट में क्या रहती है, ज़ीरो रहती है, अगर हम गैल्वेनोमीटर को बैटरी से इंटरचेंज कर दें या बैटरी को गैल्वेनोमीटर से। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है प्रैक्टिकल में। नेक्स्ट इज दिस क्वेश्चन विच इज आस्क्ड इन CBSE 2017, state the working principle of a potentiometer. Again, it is not asking about the working, it is only asking about the working principle of a potentiometer with the help of the circuit diagram. Here we have studied about the potentiometer in which I have told you about potential gradient. तो हम क्या लिखेंगे इसका वर्किंग पोटेंशियल, कि ये पोटेंशियल ग्रेडियंट पे डिपेंड करता है। ठीक है, कि जैसे जैसे लेंथ वायर की हम ज़्यादा लेते जाते हैं वैसे उसका पोटेंशियल ड्रॉप होता जाता है। Explain how the internal resistance of a cell is determined. We have studied it in our previous class, that is of 20th July. How are the following affected in potentiometer circuit? Now second part. First, how are the following affected in the potentiometer circuit? When? First part is the internal resistance of the driver cell increases. Second part is the series resistance connected to the driver cell is reduced. देखिए यहाँ पे दो चीज़ें हैं। ड्राइवर सेल, जो पोटेंशियोमीटर को डिराइव करने के लिए जो सेल यूज़ हो रही है उसका अपना खुद का इंटरनल रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस सर्किट का क्या करता है, अगर मान लीजिए किसी सेल में कोई करंट, किसी सेल को हमने जोड़ दिया, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ है, सेल के बाहर आती है करंट, अगर हम इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ा दें तो अंदर जो सेल का अपना खुद का इंटरनल रेजिस्टेंस है, अगर वो ज़्यादा हो जाएगा तो V = E - IR, आपने फॉर्मूला पढ़ा है, V = E - IR। अगर हमने इसमें स्मॉल r बढ़ा दिया तो E में से ज़्यादा EMF जो है वो अंदर खर्च हो गया, यानी V की वैल्यू कम हो जाएगी, यानी बाहर जो पोटेंशियल मिलेगा वो कम मिलेगा, और बाहर पोटेंशियल मिलेगा यानी बाहर करंट कम हो जाएगी। और जब बाहर करंट कम होगी तो आपका पोटेंशियोमीटर वायर क्या करता है, देखिए पोटेंशियोमीटर वायर कैसा होता है, ये होता है, इसके बीच में खूब सारे वायर होते हैं, आपको अगर याद हो तो इस तरह से मैंने लगा दिया। अब अगर यहाँ पे ही हमारी करंट कम आई,
यानी पोटेंशियल ड्रॉप इसके अक्रॉस कम हो गया। जब वैल्यू कम हो गई तो सिग्मा यानी वोल्ट पर यूनिट लेंथ, जब V कम हो गया तो वोल्ट पर यूनिट लेंथ भी कम हो गई, और जब वोल्ट पर यूनिट लेंथ डिक्रीज कर गई तो आपका जो पोटेंशियल ग्रेडियंट जो भी कुछ होता था वोल्ट पर यूनिट लेंथ, यही चीज़ तो होता था पोटेंशियल ग्रेडियंट सिग्मा। जब यही कम हो गया सिग्मा, लेकिन E को तो EMF को तो कांस्टेंट रहना है जो बाहर से अप्लाइड है, तो इसके लिए क्या हो जाएगी हमारी L1 जो है वो हमारा वो बढ़ाना पड़ जाएगा, यानी ज़्यादा दूरी पे जाके वो बैलेंस करेगा। यानी अब मैं फिर से एक बार आपको समझा देता हूँ। देखिए एक सिंपल सा एक्सप्रेशन समझ लेते हैं कि ये है, मान लीजिए ये एक ऐसा सर्किट है, ये AB हमारा वायर है जो पोटेंशियल वायर है, ठीक है। यहाँ पे हमने एक वो लगाया था सेल, ठीक है, और ये गैल्वेनोमीटर से जुड़ा था, गैल्वेनोमीटर, और ये बैलेंसिंग लेंथ थी। अब अगर मान लीजिए ये वाला सर्किट, इसका EMF E है, ठीक है। अब अगर हमारा इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, मान लीजिए यहाँ पे हमने ये एक पूरी सेल का काम कर रहा है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r है, V इज इक्वल टू E माइनस IR होता था। अगर R बढ़ जाएगा इंटरनल रेजिस्टेंस तो ऑब्वियस है कि यहाँ से पोटेंशियल ड्रॉप V कम होगा, और जब V कम होगा तो A और B के बीच का पोटेंशियल ग्रेडियंट जो है वो कम हो जाएगा, यानी सिग्मा पोटेंशियल ग्रेडियंट जिसको K से रिप्रेजेंट किया था वो भी कम हो जाएगा। और जब सिग्मा कम हो जाएगा तो यानी हमें ज़्यादा लेंथ तक जाना पड़ेगा इस EMF को पाने के लिए, ज़्यादा लेंथ तक जाना पड़ेगा, यानी हमारी बैलेंसिंग लेंथ बाद में मिलेगी, यहाँ की जगह यहाँ मिलेगी। ये पहला हो गया। सेकंड उसका पार्ट है कि इफ़ सीरीज़ रेजिस्टेंस इज रिड्यूस्ड, यानी अगर मान लीजिए यहाँ पे एक सीरीज़ रेजिस्टेंस लगा हुआ है R, अगर हमने इसको कम कर दिया, सीरीज़ रेजिस्टेंस कम कर दिया, तो अब क्या हो जाएगा, तो सिग्मा इंक्रीज़ कर जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे करंट तेज़ी से कम होगी, तो सिग्मा इंक्रीज़ कर जाएगा और बैलेंसिंग लेंथ जो है वो हमारी कुछ कम हो जाएगी, यानी बाहर वाले में करंट ज़्यादा फ्लो करेगी, तो यानी यहाँ ये जल्दी से हमको ये बैलेंसिंग लेंथ मिल जाया करेगी। तो इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपसे एग्ज़ाम्स में, जो प्रैक्टिकल बेस्ड भी होते हैं। एग्ज़ाम्स में, फाइनल एग्ज़ाम्स में थ्योरी प्लस एक क्वेश्चन होता है आपका प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन। तो इस टाइप के क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट क्लास में हम और कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे। थैंक यू।